Okay, we'll start. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके मुक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति लक्ष्मी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। So we'll little bit revise what I discussed yesterday about two principles I discussed yesterday. So the first principle I discussed was the learning the art of working. Learning the art of working. So patience and perseverance. The combination of these two things, patience and perseverance. So very, very important principle in our life. Very important principle. If we do not understand this principle, then we will get carried away by the people. Even as devotees, we will get carried away. We don't understand this principle of patience and perseverance like that. And we will get enamored by what is happening in the ads, what people are telling, what some devotees are telling, what outsiders are telling, what friends are telling. Learning the principle of patience and perseverance. Patience. Patience teaches us to wait. Perseverance helps us to work. Like, so we have to work for the goal, whatever goal we want to achieve, we have to work for it. At the same time, there has to be a patient. Patient teaches us to wait. Like that. Especially for devotees, this principle is important because we have got the lifestyle of overall success. We have got that understanding that we don't want one-sided success. So if the patience and perseverance is not there, then even after understanding what kind of life we should lead, we will not lead the devotional life. So एक extreme में आदमी चला जाएगा. So in this I discussed yesterday, if the patience is not there, if the patience is not there, then what will happen? Person will compromise in the spiritual life. Because he will be too restless. Why the result is not coming? Why the result is not coming? Why I am not getting this? Getting the point? If the patience is not there, he'll become restless. If the patience is not there, he may give up spiritual life when he will be faced with challenges. घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, ये तो घर में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, डिस्टर्ब हो जाएगा. किसी का जॉब नहीं लगता है, बहुत सारे डिवोटीज के लाइफ में होता है, जॉब नहीं लगता है. तो जॉब नहीं लगता है तो माइंड तुरंत इंडिकेट करता है माला के कारण हो रहा है ये सब.
माला नहीं होती तो तुरंत अभी जॉब लग गया होता, 2 घंटे तो यहीं जा रहे हैं, क्लियर मैथ से ज्यादा ही चले जाते हैं. सो यू अंडरस्टैंड, if the patience is not there, we have to understand material things are destined. It's destined. No one can change it like that. It is going to come. What we are supposed to get, it is waiting for us. It is kept for us. आपने देखा है ना, जैसे बोलते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. हाँ, और मंदिर में इसको बहुत क्लियरली आप देख भी सकते हैं. कोई व्यक्ति होता है, कोई डिवोटी होता है, कभी उसको लगता है ये महाप्रसाद, उसको लगता है बहुत डिवोटी है, इसको छुपा के रखता है कहीं. इसको मैं बाद में ऐसा जाके ना इसको ऑनर करूंगा बाद में. केक का एक बहुत बड़ा केक जब होता है बर्थडे में कटता है, तो उसको लेके छुपा के रखता है कहीं लॉकर वगैरह. और सब जब प्रोग्राम प्रोग्राम खत्म हो गया, वो अपना लॉकर खोलता है. वहां पे केवल लॉर्ड का ऑल्टर है, लेकिन ऑफरिंग नहीं है आगे, गायब हो गया. तो क्या है, इसी तरह हमारे लिए जो है, इसलिए पेशेंस इंपॉर्टेंट. स्पेशली डिवोटी की लाइफ में स्टूडेंट है तो उसको पेशेंस होना चाहिए. हाँ, कि टाइम के साथ चीजें होंगी, ये पेशेंस होना चाहिए. कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वी शुड नॉट बिकम रेस्टलेस, टू मच रेस्टलेस अबाउट थिंग्स. फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, डोंट बिकम रेस्टलेस, दे हैव पेशेंस. डोंट, ये व्हाई आई एम टेलिंग पेशेंस, बिकॉज दीज आर द रीजंस वी कॉम्प्रोमाइज भक्ति. तो हर के बहुत सारे उदाहरण मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे. मैनी पीपल दे डोंट हैव पेशेंस, सो दे गिव अप स्पिरिचुअल लाइफ फॉर सॉल्विंग फैमिली अफेयर्स. हमारे किचन में एक डिवोटी था, वेरी गुड डिवोटी. तो पहले तो गलत एसोसिएशन था उसका, ड्रिंकिंग करता था, सब करता था. फिर किचन में आ गया, तो उसके जो पिताजी हैं वो भी ड्रिंकिंग करते थे, ये उसकी मदर को मारते थे वो सब. तो डिवोशनल लाइफ में आ गया, तो अब उसका सब छूट गया. ही बिकेम वेरी गुड डिवोटी, very good devotee, and very clean, systematic, very good service attitude. Then his mother would call sometimes. So then he would ask me, see, my father is like this. When go, okay, you call your mother here. Oh, mother will not come. So when go, okay, you go and come. बोला वो मैं जाऊंगा तो मैं वहां रहता हूँ ना, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. क्या बोला उसने, क्या बोला? और भी उदाहरण है. उसने क्या बोला, मैं वहां रहता हूं ना तभी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. ये तो मैंने कहा आप वहां रहोगे ना तो भक्त नहीं रहोगे, और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, 100%. दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन मेनी प्लेस. बट इवेंट एन इवेंट गया तो फिर गया स्टेशन गया, he didn't return. It doesn't, we need to have pay, we cannot change we cannot change much in this world. So I told you can offer some support to your mother like that. But if you go and stay, your devotional service itself will go. You go, offer some support, come back. Why? Because your mother will also, she wants to stay there only. And she wants that he should also go back and stay there. But then he will not be able to keep his devotional service. तो वो गया, उसका भी छूट गया. और वो तो ऐसे सिचुएशन तो सॉल्व होते नहीं ना कभी. सॉल्व होते हैं कभी ऐसे सिचुएशन? सॉल्व होते नहीं. सो वी नीड टू बी पेशेंट like that. Similarly, sometimes there are financial issues. I have seen some devotees living spiritual life because of financial issues in the family. So lot many financial issues. प्रभु फाइनेंस, सब लोग बोलते हैं कब जॉब लगेगा, कब जॉब लगेगा. मेरे इतने रिलेटिव्स हैं, सारे रिलेटिव्स का अच्छा अच्छा जॉब लग गया है, केवल मेरा ही जॉब नहीं लगा है. ये yeah, that's true. But what happened, the mind says just give up devotional service and you सर पे कफन बांध के जॉब निकालना है तुमको. वो मूवी में अच्छा लगता है. वो जॉब जब निकलना है ना तभी निकलेगा. वो 2.5 घंटे की मूवी में आधे घंटे में हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. for 10 minutes they show he's going to the gym.
And after 10 minutes, he is Shaktivan. Huh? So, but in real life, it's different than the real life. So, I've seen some devotees who solve that, then they leave devotional service fully. I don't want to take names, I can take names. Then they leave devotional service, they're preparing for job, like that. And after a job, now they want to come back. Why? Because there's no rasa, they understand. जॉब लग गया उसके बाद उसको कोई टेस्ट नहीं है, राइट? उसको रियलाइज हो ही जाता है ना. I was sharing when we went for DDU, that one time program, that was ना गौरव सिंह सर, he's IAS, his wife is IAS. He said, प्रभु जी जब हम लोग कॉलेज में थे पुणे में, we used to attend प्रेरणा programs. तो बहुत अच्छा लगता था. उसके बाद लगा किसी तरह निकालने लगा था, यूपीएससी निकल गया, सब कुछ हो जाएगा. निकल गया, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने चैलेंजेस हैं, इतने लोगों के एक्सपेक्टेशंस. तो व्हाट हैपेंस, एवरीवन रियलाइजेस आफ्टर क्रैक. पर क्योंकि उसने उस समय छोड़ दिया, उसने वो पेशेंस नहीं रखा. He could have under guidance, he could have made certain adjustment, but not good to leave spiritual life altogether. So this is what, that is why patience is important in the life of a family person, in the life of a devotee, in the life of a person who is preparing for a job, and on also for working devotees. Working devotees. Many times when they go in the working, they go into the workings, they think, अरे वो तो वॉइस में था, वो तो मंगल आरती करना है, जप करना, तो वॉइस के लिए था. अब हम लोग वर्किंग हो गए, वर्किंग का तो अलग रहता है ना. एंड दे थिंक ये तो ट्रांजिशनल फेज है ना, थोड़ा फेज चेंज हो रहा है, तो उसमें कर सकते हैं. सो दे डोंट हैव पेशेंस, सो दे गिव अप. So patience is required and perseverance is required, because if the perseverance is not there, then one will blame Krishna consciousness. We don't get result not because there are devotional activities. We don't get result because we did not do our best. And as a devotee, Krishna is watching. The greatest gift we have received in our life is Krishna consciousness. And if we blame Krishna consciousness, Krishna is watching. Krishna will take away. Krishna will say, I have given him the diamond, and he is blaming Krishna consciousness. So I have seen voice devotees blaming. I have seen working devotees, अरे बहुत थोड़ा stress ज़्यादा हो गया. Voice में यार बहुत लंबा हो जाता था वो. I gave you examples yesterday like that. So this is the why, because we have not been perseverant in trying to do. We have good amount of time. Actually, when we come to Krishna consciousness, lot of time gets saved. We are not watching movies, we are not doing nonsense, at least we are not supposed to do. Like that. तो बहुत टाइम सेव होता है, लेकिन वो टाइम को we don't utilize in Krishna consciousness. We don't utilize for preparing for our studies and exams. Like that. That is why the combination of these two, patience and perseverance, is required, especially for devotee. Patience will help us to stick to devotional life. And perseverance will help us to have faith in the devotional life works, and you will not blame like that. And whatever is the destined result, you will be able to do your best for that. So very, very important principle I discussed. First principle yesterday. Second principle I discussed is Niyam Agra. So this is another important principle. One is not following rules. Second is following rules mechanically. So yesterday I have discussed the first part. Not following rules. Not following rules. Like that. No one is above the rules. This is a principle we need to understand. No one is above the rules. That is why शास्त्र में जो बोला है, divine person means he follow rules. हाँ, वो divine mentality है. Demonic mentality means he does not follow rules. तो अभी देखिए कलयुग में this is what people like, right? जो मूवी में हीरो है वो क्लासरूम में जाके बैठता है? नहीं बैठता है ना, वही हीरो है. वो क्लासरूम में बैठेगा तो मूवी चलेगी नहीं. ये so the modern concept is defy the authority, don't follow authority. यही है ना मॉडर्न कॉन्सेप्ट. सो ये वाइब्रेशन हम सबके अंदर है.
The Shastras are telling we have to learn to follow the rules. और ये टेंडेंसी मतलब भरा हुआ है ना, जैसे ट्रैफिक लाइट है, कोई ट्रैफिक पुलिस में नहीं है तो रहेगा चलो उसको क्रॉस कर लिया जाए. Correct. So this is a tendency. We have to understand rules makes us free, and especially when we come to devotional service, we got to know about many rules, and if we follow those rules, it will help us. So I made that statement yesterday. Obedience is the hallmark of a disciple. It's a prime quality of a disciple to learn to obey like that. So if we become obedient to Hari Guru and Vaishnavas, spiritual master, when we become obedient to them, life becomes very safe, very protected. And if we don't obey, then anyways we have to obey forcefully, Maya. There's no option for us. So this is the second principle we discuss, not following rules. So what all principles I told in that? Not following rules. कौन कौन से रूल हम लोग नहीं फॉलो करते हमको पता है ना? लिस्ट बनाने हाँ लिस्ट बनाने की बता सकते हैं. हाँ हाँ लिस्ट बनाना बोल था मैंने. बनाई किसने लिस्ट? वही रूल नहीं फॉलो किया होगा. हाँ एमसीकल का मतलब एग्जैक्टली वही है, नॉट डूइंग व्हाट इज टोल्ड. So yesterday I discussed in that not following rules. We have to see what are the basic rules which is told to us in Krishna consciousness. Like filling sadhana card. कल ही बड़ा लिस्ट निकला है उसका. Maximum. It is such a simple thing. Actually, yeah, there's a tendency not to obey. That's the problem. You know, filling sadhana, whatever we have done, even if zero is there, we should fill. Like that. So let the people see and we also become humble. You don't fill sadhana card. What else I told yesterday? Parental control. So many times we have discussed, and devotees are there, and if they don't have parental control in their mobile, they have a free internet access. Not a sincere devotee. You can very easily understand there's no sincerity. Because you have free internet access like that. And are we self-control sages? We are Kaliuga people. How will you not misuse it? And so much of time also gets wasted that way. We imagine there was one point of time in Pune, there was no phone. Even button phone was not allowed, you know. Button phone was not allowed. तो एक फोन होता था वो रखा जाता था वहां पे, वो कॉल सेंटर होता था. तभी किसी ब्रह्मचारी को हमको कॉल करना है, हम लोग वॉइस में थे तो कॉल करना है तो कॉल सेंटर में हम लोग कॉल करते थे. मोबाइल आ चुके थे तब तक, बट रायशंपुर इज नॉट अलाउड फॉर ब्रह्मचारी. व्हाई? बिकॉज मोबाइल विल लीड टू प्रजल्पा. तो वो कॉल सेंटर पे कॉल करते थे, फिर वो कॉल सेंटर से वो व्यक्ति बुलाने जाता था ब्रह्मचारी आश्रम. फिर वो ब्रह्मचारी आता था, फिर बात होती थी इस तरीके से. और उसके बाद फिर बटन मोबाइल आए, उससे बहुत रिसर्च हुआ कौन सा बटन मोबाइल होना चाहिए, उसमें कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, एकदम. तो वही एक मोबाइल, जैसे ये एक घड़ी है ना, सबका यही घड़ी, ऐसे वही एक पूरे आश्रम का वही मोबाइल था. और वॉइस में भी हम लोग जितने डिवोटी होते थे उस एक ही मोबाइल ऐसा था. अब लेकिन प्रगति हो रही तो कैसे स्मार्टफोन आ गए. हाँ, स्मार्टफोन पे भी कितना डिस्कशन हुआ, कितने टाइम बाद. इट्स बिग डिस्ट्रैक्शन. So parental control, it's told. So every devotee's mobile, there should be parental control. So is it there in devotee's mobile? Who does not have parental control in the mobile? Huh? 1, 2, 3, 4. So it is my request, please have parental control in your mobile. Huh? It will have some restriction. Huh? Some restrictions will be there, but you will be protected. Huh? Who was telling yesterday? Who was that devotee? Yes, Nishant Prabhu was telling, right? Is Dadaji is using Facebook? It's so unfortunate it is. Even when I sometimes, my parents are not knowing about mobile. Mother still does not know much, but father uses.
WhatsApp, another thing. I feel unfortunate like that. People are wasting time like that. So as a devotee, we have to be very conscious. So this is an important rule. There should be a parental control in the mobile. There should be a limit for using WhatsApp like that. And there should be all the unnecessary sites should be blocked. This is a principle for checking Kali. Kali Yuga enters through these things, and these are the agents, whoever has designed all these social media networks. So once I asked Radheshyam Prabhu this thing, Radheshyam Prabhu has given me this answer. So he said, you see, when we were in AIT also, that time also internet was not allowed. But when placements came, placement seasons, then everything was coming on the something on the website, all that. That time internet was there. So that time Prabhuji told this principle. Prabhuji told, see, in Parikshit Maharaj kingdom, Kali Yuga time came when Parikshit Maharaj started ruling. Because the moment Krishna left, Kali Yuga has to enter. But Parikshit Maharaj ruled in such a way, Kali could not enter. Even though Kali Yuga time has come, then he asked for 4 places. So Parikshit Maharaj gave 4 places, but he ruled in such a way the 4 places were not existing only. So he said, similarly, now it is a time of Kali Yuga. And now it is a time of Kali Yuga. And Kali Yuga is already pervading. And one of the major thing is through internet. Internet is one major thing by which the people's mind and consciousness getting contaminated. तो वो तो कलयुग का काम है, वो अपना काम कर रहा है. Now, for us, it is important to create a system by which it should not affect. So system क्या है? तो कलयुग के एंट्री के लिए क्या ब्लॉक है? कौन से 4 places जैसे कलयुग आता है 4 principles जो ब्रेक होते हैं. हाँ, तो अभी उसके लिए क्या है? We should create a system by which Kali can be checked. So this parental control is one of the system. Sadhana card is another system. These are the systems to check entry of Kali, like that. So if you don't follow this system, then we are giving red carpet welcome to Kali Yuga. It's already there. Third thing, as I told you, not eating unoffered foods. That was the third thing I was telling you. These are the basic rules is told to us we should try, because food makes a lot of difference in our consciousness. Food affects us a lot. I remember once Maharaj explaining that what we see with eyes, you see something with eyes, you see something improper, it affects you or not? Is it not? You have not touched it, you just saw it, how much it affects you. Now, just imagine what is going inside, how much it will affect. So that is food. From ahar comes consciousness. Ahar shuddho, sattu shuddho, dhruva smriti. So ahar से चेतना बनती है. वो व्यक्ति कोई हल्दीराम के नमकीन खा रहा है, कोई बाहर से कुछ खा रहा है, प्रोसेस्ड आइटम, तो इट्स अनहेल्दी लाइक दैट. इट्स अनहेल्दी. सो तो वो इसमें तो कोई इशू है नहीं. वी आर गेटिंग प्रसादम 3 times. टेम्पल वी आर गेटिंग प्रसादम 3 times. Like that. So there should be no thought like this. And if someone has to take fruits or anything, he can come, he can offer to the Lord, he can honor. Somebody not staying in association of devotees, he has to find out without onion, garlic, what is available. Somebody is in job and all. And that he should offer. Offered food should be taken. So this I was discussing. Not following, these are some of the rules. So whatever the rules are there, getting up early in the morning, coming for the morning program, these are the rules. Rules makes us free. Free from the clutches of the subjugation of mind. If we don't follow rules, we become victim. Right? Because when we don't follow rule, we follow mind. Right? And Rasham who said, I said that quote. What was the quote? Yes. Man moji, Maya ka fauji. Then he becomes soldier of Maya. मन के अनुसार चल रहा है ना ये, तो विक्टिमाइज्ड हो जाता है. That is why we should follow the devotional rules given to us. Morning program is a gift of Srila Prabhupada.
getting up early, reading scriptures, reading programs. Now, the next thing which I want to discuss today is not following rules mechanically. एक है नॉट फॉलोइंग रूल्स, दूसरा क्या है फॉलोइंग रूल्स मैकेनिकली. वो फॉलो तो कर रहा है लेकिन मैकेनिकली फॉलो कर रहा है, वो रूल का स्पिरिट ही चला गया है. हाँ. तो ये जो मैकेनिकल फॉलो करते हैं वो भी अच्छा नहीं है. ये फंडामेंटल और ये जो प्रिंसिपल्स हैं डिवोशनल लाइफ के, ये हम लोग शुरू में सेट राइट नहीं किए ना, बाद में भी वैसे ही रहते हैं. जनरली आसानी से चेंज नहीं होगा अनलेस आपको कोई क्लोज एसोसिएशन मिल रहा है वैष्णव का, नहीं तो आप देखोगे वो हैबिट चेंज नहीं होता है डिवोशनल लाइफ वैसे. तो मैकेनिकली कोई चीज करते हैं तो वो होता नहीं है. जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, जनरली होता है. तो रायश्याम दिस एग्जाम्पल. तो अभी जो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, तो वाइफ से पूछा था एक मीडिएटर आया सॉल्व करने के लिए. वाइफ से क्या प्रॉब्लम है, तो वाइफ ने बोला अरे मेरा बर्थडे था, इसको बर्थडे भी याद नहीं है मेरा बर्थडे था ये. तो मीडिएटर ने बोला अरे भाई, जो बीच वाला व्यक्ति जो सॉर्ट आउट कर रहा था, उसने बोला अरे तुमको बर्थडे याद नहीं है अपनी वाइफ का ये. तो बोला अरे याद था मुझे, मैं किया था रात को एसएमएस किया था, उसको याद था मुझे ये. तो उसने बोला अरे एसएमएस नहीं, अरे उनको कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहिए वाइफ को. ठीक है. तो अगले दिन गया उसने, तो अभी वाइफ और हस्बैंड में बात नहीं हो रही है, तो गया खिड़की के उससे खिड़की में एक गिफ्ट लटका दिया, हैप्पी बर्थडे डन. तो फिर वो मीडिएटर अगले भी क्या, कभी झगड़ा चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है. तो उसने बोला तुम गिफ्ट दिया था, हाँ गिफ्ट दिया था. तो वाइफ से मुझे प्रॉब्लम क्या है, उसने गिफ्ट दिया ना तुमको बर्थडे का. मतलब गिफ्ट दिया लेकिन क्या वहां लटका दिया, क्या ना कुछ देखा ना कुछ बोला. तो उस मीडिएटर ने बोला अरे गिफ्ट ऐसे नहीं देते हैं, वो गिफ्ट देना है, गिफ्ट लो, थोड़ा बोलो हैप्पी बर्थडे, कुछ ऐसे बोल के दो ये. ठीक है. फिर वो आया बीच में ऑफिस से, एक वो गिफ्ट उसने लिया था, एक गिफ्ट लेके अपने भाई बोला हैप्पी बर्थडे. फिर झगड़ा वैसे ही था. फिर वो मीडिएटर आया, बोले क्या दिया कि नहीं गिफ्ट, गिफ्ट दिया, हाथ में दिया कि नहीं, हाथ में दिया, बोला कि नहीं, हैप्पी बर्थडे बोला कि नहीं, बोला हैप्पी बर्थडे. तो ऐसे बोला अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसने गिफ्ट दिया तुम्हारे को हाथ में दिया हैप्पी बर्थडे. सो क्या है, ये है स्पिरिटलेस एक्टिविटी. सब कुछ हो रहा है लेकिन क्या है उसके अंदर स्पिरिट नहीं है. इसको बोलते हैं रिचुअल. तो जब हम आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं उसमें जब वो उसका पर्पस लॉस्ट हो जाता है कई बार, डूइंग द एक्टिविटीज विदाउट द स्पिरिट लाइक दैट. सो जब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ कर रहे हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग वी शुड अंडरस्टैंड द पर्पस, व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट इज द गोल. तो फिर क्या है, वी थॉटफुली वी कैन ऐसे. तो हमारे वो अभी कैसा है, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम में कोई नहीं आता है तो एक रूल है, महामंत्र उसको लिखना चाहिए. हाँ, यहाँ पे स्टार्ट किया है कि नहीं वो, हाँ हाँ स्टार्ट कर देना चाहिए महामंत्र. महामंत्र देखिए लिखने का भी पुण्य है, करने का भी पुण्य है, तो डबल पुण्य मिलता है जो लेट आता है. क्योंकि जो लेट आ रहा है उसको ज्यादा कृपा की जरूरत है, तो उसके लिए बना है. तो इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ ब्लेसिंग ये. तो वो पनिशमेंट क्यों लगाया है, दो कारण है. एक तो जिससे व्यक्ति थोड़ा सिंसियर हो जाए, वो ट्रांसडेंटल पनिशमेंट है, उसका हार्ट प्योरीफाई हो और वो थोड़ा सिंसियर हो जाए, अगले टाइम के टाइम पे आएगा. हम लोग जब AIT में थे तो एक मेरा बैचमेट थे, वहाँ पे हमेशा लेट आते. तो हमारा जो टेम्पल हॉल था हमारी वॉइस से 700 मीटर 700 मीटर 800 मीटर ऐसे दूर था वो थोड़ा, जहाँ हम रहते थे. तो सुबह मैराथन होती थी 4 बजे. फटाफट आपको पता है डिवोटी नहाते थे, उसके बाद दौड़ते थे. वो जहाँ रहते थे वहां से
टेम्पल हॉल के लिए। तो ये डिवोटी 7 में से 5 दिन तो हो ही जाता था इसको लेट, क्योंकि ये 4:15 पे उठता था। अब आप सोच लो कितनी भी फुर्ती से आदमी हो, क्या धोती कुर्ता पहनना है, तिलक लगाना है, पहुंचना है। तो 7 में से 5 दिन लेट हो जाता था। ये तो लेट हो जाता था तो महामंत्र की कॉपी भर गई। तो मेरा बैचमेट ही था। तो एक दिन हम लोग क्लास में बैठे थे, तो जब क्लास में बैठे थे तो मैंने देखा बड़ी सिंसियरली ये कुछ लिख रहा है। तो क्लास में थ्योरी ऑफ मशीन होता था ना मैकेनिकल में, टॉम 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 एक सब्जेक्ट होता है थ्योरी, वो वैसे ही कई बार कॉलेज के टीचर्स बहुत अच्छे रहते नहीं, समझ आता नहीं ये। तो जनरली कई बच्चे सो जाते हैं, कुछ लोग अपना काम करते हैं, ये लिखने में लगा हुआ है। तो मेरे को लगा इतना सिंसियरली क्या लिखा। तो मैं देखो महामंत्र लिख रहा है। हाँ, तो मैंने बोला, भाई तू महामंत्र यहाँ पे क्लास में लिख रहा है? तो उसने बोला कल के लिए। तो फ्यूचर के लिए पहले से लिख रहा था। कि मतलब उसको श्योर है कि भाई मैं टाइम पे नहीं जाऊंगा, तुमको जो रूल बनाना है बना लो। हाँ, हम चेंज नहीं होंगे, हम नहीं सुधरेंगे, ये एटीट्यूड है ना। सो इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। यही मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉलोइंग रूल्स मैकेनिकली। So this is, I told, very gross example. Similarly, when we are paying obeisances, as I have told, हाँ, when we are paying obeisances, हाँ, तो obeisances में से अष्टांग प्रणाम होता है। तो उसमें एक अंग क्या होता है? मन। एक होती है वाणी, वो भी इन्वॉल्व रहता है। तो हम वाणी से बोल रहे हैं कि नहीं, उसका प्रणति मंत्र। तो अगर किसी का हैबिट लग गया कि वो बिना प्रणति मंत्र बोले प्रणाम करता है, तो वैसे ही करते रहेगा, अगर वो हैबिट चेंज नहीं किया उसने। अगर वो हैबिट चेंज नहीं किया ना, तो बिना प्रणति, तो उसको अपना हृदय ऑफर करना है और वाणी भी ऑफर करनी है, ये 2 चीजें, तब अष्टांग होता है। तो मंत्रार्थ, उसका उसको मंत्र बोलना है और उसके अर्थ सोचना है। तो हर जो डिवोशनल एक्टिविटी है ये हमको भक्ति में बहुत एलिवेशन देती है। ये सब 64 अंग में आता है। तो कई बार हमको लगता है भक्ति में केवल साधना मतलब क्या यार, रीडिंग जितना ज्यादा कर लेंगे, हियरिंग जितना ज्यादा नहीं, अच्छे से करना है, रेगुलरली करना है, अच्छे से करना है। और जो भी हम कर रहे हैं, जैसे तिलक लगा रहे हैं, तिलक लगाने के मंत्र होते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वैष्णवाय नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः। हाँ, तो अगर हम वो मंत्र बोल के लगाएंगे तो तिलक लगाना डिवोशनल एक्टिविटी हो जाएगा। नहीं तो मैंने देखा है डिवोटीज को तिलक लगाते हुए 1 मिनट में, ऐसे भी देखो मैंने, ऐसे ऐसे तुरंत फटाफट 12 तिलक। तो दिस इज नॉट द मीनिंग, यू नो। तो when we do it, any activity, when we do it properly, it becomes devotional. It becomes devotional. When we are offering obeisances, when we are putting tilak, is there prasadam le rahe hain, prasadam kya le, prasadam prayers hai, when we do it properly. So if we get this habit na, it will come to a habit. और ये हैबिट नहीं बनाना शुरू में, तो वो हैबिट लग जाएगा, उसका हैबिट लग जाएगा बिना प्रसादम प्रेयर किए। इसी तरह किसी को ओबेसेंसेस पे करते हैं, बोलते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और इसके हृदय में जो परमात्मा है उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। ये तो ट्राई करना चाहिए बोलने का, पहला। दूसरा ये भी मेडिटेट करना है कि इसके हृदय में जो भगवान है उसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, इस तरीके से। वो हैबिट नहीं लगा तो फिर वो मैकेनिकल का हैबिट लग जाएगा हमेशा, मैकेनिकल नहीं। इसी तरह मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, शिक्षा अष्टकम, इसमें बोलना भी एक तपस्या है, मालूम है? नहीं मालूम है? इसमें बोलना भी, शिक्षा अष्टकम बोल पाते हैं हम लोग पूरा? अगर किसी का हैबिट है नहीं बोलने का, नहीं बोलेगा। शिक्षा अष्टकम के टाइम वो मौन व्रत उसने लिया। वो क्या है ना, माइंड सेट हो गया है, वो हैबिट सेट हो गया है उसका माइंड में अभी, कि भाई ये तो मैकेनिकली करना है ये हमको। ये अभी वार्म अप हो रहा है जब के लिए, धीरे धीरे जब का टाइम आएगा। ये पहले चलो बॉडी तो आ गया हमारा टेम्पल हॉल में, शिक्षा अष्टकम के बोलना, शिक्षा अष्टकम को। इसीलिए बोलना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है।
मंगल आरती है, नरसिंह आरती है, तुलसी आरती है, उसको बोलना। तो हमको देखना चाहिए क्या क्या चीज हमारा मैकेनिकल हो रहा है, और आप देखोगे जो मैकेनिकल हो रहा है वो मैकेनिकल ही चलता है। किसी भी चीज को अगर चेंज करना है ना तो इनिशिएटिव लगता है। जैसे प्रेयर से ओम ज्ञान ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, इसमें भी बहुत प्योरीफाइंग है। एक्चुअली व्हेन समवन इज प्रेइंग, इज सीकिंग, इज प्रेइंग ऑल दिस पर्सनालिटी। Om Agyantimiranda, I don't have any knowledge. Jnana, give me the eyes of knowledge. Jnananjana shalaj. Chakshurunmilitam yena tasmai shri. The spiritual master who gave me the eyes of knowledge, I pay obeisances to him. ये तो उसको हम ऑफर, फिर सबसे प्रेयर्स हो रही है। श्री चैतन्य मनोविष्टम, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, साग्र जातम, और उसके बाद सारे 6 गोस्वामी, ललिता, विशाखा, चैतन्य, वी आर प्रेइंग टू ऑल दिस पर्सनालिटी। तो ये अपने आप में एक डिवोशनल सर्विस है, और इससे अपने आप में कॉन्शियसनेस बहुत एलिवेट हो जाती है। प्रभुपाद जी ने जो प्रोग्राम दिया है, हमको उसमें बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, उससे बहुत एलिवेशन होता है अगर व्यक्ति उसको कॉन्शियसली करे। बहुत सारा चीज हमको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, अगर व्यक्ति जो दिया है उसको अच्छे से करेगा, उसको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एक्टिविटीज हमको लगता है तो रोज ही कर रहे हैं, तो इसके बाद वाला मेन है, ये एक बार खत्म हो जाए वो अज्ञानति मेरे अंदर से, उसके बाद चालू होगा ना क्लास, तो उसके बाद चालू होगा ये। हाँ, तो that why we have to list it down, what we are doing mechanically, what are the things we are doing mechanically in our spiritual life, because mechanical means least benefit. It's not that you will not get benefit, you will get the least benefit. अब सपोज आपको 5 लाख जिसमें मिलते उसमें 50 रुपए मिल रहे हैं, इट्स एज गुड एज यू आर गेटिंग नथिंग, इज इट नॉट? सो इट्स लाइक दैट। हाँ, तो हम लोग इतना सारा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है जो कर रहे हैं, लेकिन उसको कॉन्शियसली नहीं कर रहे। हाँ, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्या व्रतम राजन विश्वासो नैव जायते। महाप्रसाद, गोविंदा, होली नेम एंड ब्राह्मण। हाँ, जिसका पुण्य कम होता है, ये 4 चीजों में उसका विश्वास नहीं जमता है। ये पहली लाइन का अर्थ है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी, विश्वास नहीं जमता उसका इन चीजों में जल्दी, जब तक पुण्य कम रहता है। तो ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ में है, किसी भी चीज में हम क्वालिटी ऐड करना चाहते हैं, वी हैव टू ऐड क्वालिटी इन व्हाट वी आर डूइंग रेगुलरली, which is a part of our life. Then we should work upon the basic things which is told, reading, hearing, chanting. Then the third thing is think about extra. अभी देखो एक्स्ट्रा के बारे में आदमी कितना एक्साइटेड रहता है। ये तो कई बार जब कार्तिक आता है लोग बहुत वाउस लेते हैं, कार्तिक बहुत बड़ा अच्छा है वो लेना ही चाहिए। ये कई बार इम्प्रैक्टिकल वाउस लेते हैं, वो पूरा नहीं होता, दिस विच इज ऑल्सो नॉट गुड लाइक दैट। फर्स्ट एक्चुअली वॉट एवर इज गिवन रेगुलर टू अस, उसमें क्वालिटी ऐड करेंगे, लाइफ विल बिकम अ लाइफ ऑफ क्वालिटी। बट माइंड जो रेगुलर है ना, माइंड उसको साइड कर देता है, माइंड बोले ये छोड़ो, कुछ अलग करो, थोड़ा कुछ अलग, कुछ हटके, ये तो सब कर ही रहे हैं। ऐसा करो एक दिन 64 माला, 16 से कुछ होने नहीं वाला है, 16 से नहीं होगी चेतना में कुछ ज्यादा विकास नहीं होगा, 64। तो उसको लगता है कुछ मैं हटके करूंगा तो कुछ होगा। स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभुपाद इज गिवन एज द सिस्टम, इफ वी डू इट कॉन्शियसली सो मच क्वालिटी विल कम। और ये सब हमारी लाइफ का पार्ट है, इसको कॉन्शियसली करना ज्यादा इजी है। तिलक तो रोज लगाना ही है उठ के, ये हाँ, वी हैव टू रेगुलरली टेक बाथ like that, we have to regularly pay obeisances, we have to daily take prasadam that way। तो क्या हो जाता है, we tend to do these things mechanically। प्रसादम प्रेयर्स है, obeisances है, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, लाइक दैट। तो क्या होता है, अगर ये चीज कॉन्शियसली करेंगे, कृष्णा विल ऑल्सो गिव अस द इंटेलिजेंस टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो प्रॉपरली, क्योंकि फाइनली एवरीवन एक्ट्स एज पर हिज कॉन्शियसनेस। बट इस चीज में हम लोग मिस कर जाते हैं। ये
तो फिर क्या है, वो कॉन्शियसनेस कहीं से बहुत मुश्किल हो जाता है फिर हमको एडिशनल चीजों को भी करना। ये तो कॉन्शियस एक्टिविटी एंड मैकेनिकल एक्टिविटी, आसमान और जमीन का अंतर है। आसमान और जमीन का इतना अंतर है। जब हम अनकॉन्शियसली करते हैं तो सुकृति मिलता है केवल। हम्म? जब कॉन्शियसली करते हैं, उसमें एनर्जी डाल के करते हैं, तो उसमें स्पिरिचुअल एलिवेशन होता है। बहुत अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है। तो अगर मैकेनिकली कोई व्यक्ति लॉन्ग समय तक एक्टिविटी करते रहेगा मैकेनिकली, he will start losing faith on the potency of spiritual activity. So one should be very, very calculative how we are doing, what we are doing, like that. If just the regular things we are doing, we start doing properly. And second is then we can take some baby steps for improving. Like we can start observing Ekadashi properly. Some baby steps like that. Then lot of quality can be. So Niyamagra. And next point also I want to discuss little bit. So two more points, let us see how. One is avoiding extremes under guidance. Avoiding extremes under guidance. This is very, very important for devotees. Because for anything, it is very important that we should have some guidance. Why guidance is important? Because experience का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे राधानाथ महाराज का एक लेक्चर है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मैच्योरिटी एंड रियलाइजेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे तो पहला प्रिंसिपल क्या है, वी शुड अवॉइड एक्सट्रीम्स। वाई वी शुड अवॉइड एक्सट्रीम? बिकॉज जनरली मन का स्वभाव क्या होता है, वो एक्सट्रीम पे काम करता है, और इसी तरह से हम कुछ चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। तो मन क्या है ना, उसको लगता है कि मैं ये एक्सट्रीम पे काम करूं, वो सेटल नहीं होता है। ये मन का स्वभाव है, वो एक्सट्रीम्स में वैसिलेट करता है। पेंडुलम ना वैसिलेट्स बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस, ऐसा होता है। तो एक्सट्रीम को अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति एक्सट्रीम को अवॉइड नहीं करता है तो क्या होता है, किसी एक चीज पे अनड्यू कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो मॉडर्न कल्चर क्या है, एक्सट्रीम्स का कल्चर है। आप जनरली मॉडर्न कल्चर देखोगे तो क्या है, एक्सट्रीम का कल्चर है ये। तो जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो भी एक्सट्रीम में करते हैं। देखा ना, IIT का प्रिपरेशन ये एक्सट्रीम्स में करते हैं। फिर कॉलेज जाते हैं तो एंजॉय भी एक्सट्रीम्स में करते हैं। फिर जब जॉब में जाते हैं तो वर्क भी एक्सट्रीम में करते हैं ये। और उसके बाद इतने डिसीज हो जाता है तो बिल भी एक्सट्रीम में आता है उनका, डॉक्टर का ये। और फिर वृद्धावस्था में चिंता, एंजाइटी भी एक्सट्रीम में रहती है। लाइक वैदिक कल्चर टीचेस अस वी शुड लिव हैव बैलेंस। किसी भी चीज में कभी भी एक्सट्रीम से सक्सेस नहीं आएगा। वी हैव अ थॉट प्रोसेस, एंड व्हाट इज अ बैलेंस फॉर अस, वी नीड सम गाइडेंस। स्टडीज है, जॉब है, लाइक दैट। हर चीज का एक सिस्टम होना चाहिए। हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हाँ, हमारा होम विजिट्स है, सब चीज का एक सिस्टम होना चाहिए। किसी भी चीज में आप एक्सट्रीम करोगे तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा है। तो हर चीज को जब आप एक रेगुलेशन के साथ रखोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा क्या होता है, जनरली एक्सट्रीम में व्यक्ति क्यों जाता है, क्योंकि उसका माइंड बोलता है कुछ भी अगर हम अच्छा चीज कर रहे हैं, स्पेशली जब हम स्पिरिचुअल लाइफ करने लगते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा कैरेक्टर इंप्रूव होने लगता है, हमारा थॉट प्रोसेस इंप्रूव होने लगता है। तो क्या होता है, देखोगे आप तो माइंड बोलता है कि इसको थोड़े समय के लिए आप डिक्रीज कर दो, और ये जो मटेरियल लाइफ वाला है इसको थोड़े समय के लिए काफी इंक्रीज कर दो। उसके बाद क्या करना, एक बार मटेरियल लाइफ सेट हो गया, फिर मटेरियल लाइफ वाले को थोड़ा डिक्रीज कर देना और स्पिरिचुअल लाइफ वाले को पूरा इंक्रीज कर देना। करेक्ट, हाँ, ये बोलता है। अभी जैसे शुरू में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा करते थे कि प्रभु जी, ये सिविल सर्विसेज है,
सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना चाहिए क्योंकि इतना प्रचार की जरूरत है, मुस्लिम इतने बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी का इतना कवरेज कन्वर्जन हो रहा है। हाँ, हमको सिविल सर्विस का कुछ प्रिपरेशन करेंगे, कुछ निकालेंगे तो कुछ होगा। तो प्रोड्यूस समय बोलते थे जो सिविल सर्विस कर लिया है ना उसको प्रचार करो। ये करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर वो कर रहा है तो पर प्रिंसिपल क्या वो बताया जाता था जनरली, जो एक अच्छा प्रिंसिपल है जो हमको समझना चाहिए कि स्पिरिचुअल लाइफ में बेसिकली जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मतलब क्या है कि मैं सब छोड़ के पहले वो निकाल लूं, पहले सिविल सर्विस निकाल लूं और फिर मैं पूरा भक्ति का प्रचार करूंगा। ये तो वो होता नहीं है। और आप भी अपने आप लोग सब वॉइस डिवोटीज हैं, ऑल ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस, जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ डिवोटी हु हैज ओवरली कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन स्पिरिचुअल लाइफ, जस्ट रिफ्लेक्ट and see, he might be material successful now, see the spiritual standing of such a devotee, you can think in your mind वो डिवोटी का अभी क्या स्पिरिचुअल स्टैंडिंग है ऐसा। तो अवॉइड एक्सट्रीम्स, बी रेगुलर इन योर स्टडीज, be planned in your studies and also be regular in your spiritual life. At right time you'll get the result. You have some concern, no problem, you clarify, discuss. बैलेंस हर व्यक्ति के लिए अलग रहता है, वो एक ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना ही बैलेंस, वो अलग रहता है। आप अपने किसी व्यक्ति का घर का नीड्स है, वो सारा नीड्स है, so that's what I told, avoid extremes under guidance. Under guidance try to understand what is the balance which will work for you, and then you put efforts in both, in your material life, in your spiritual life, like that. So if you want to avoid extremes, one very important thing is you fill the gaps, you fill the gaps. तो क्यों हमको लगता है कि आध्यात्मिक चीज को छोड़ के मटेरियल लाइफ को हमको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा तभी सेट हो पाएगा, नहीं तो सेट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं तो नहीं मैनेज हो पाएगा, ऐसे क्यों लगता है हमको? हाँ, हाँ, हायर टेस्ट नहीं होता है, हाँ, कृष्ण पे भरोसा नहीं होता, ये सब बहुत बड़े आंसर है, वो तो है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। One major practical reason is we don't fill the gaps. There are so many gaps. Is it not? There is a pure spiritual life. आपका मॉर्निंग प्रोग्राम है, रीडिंग है, हियरिंग है, चैंटिंग है, इज अ प्योर स्पिरिचुअल लाइफ। उसके बाद प्योर मटेरियल लाइफ है जिसमें आप या तो पूरा अपना पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब वाला है वो जॉब कर रहा है, इसके अलावा कोई तीसरा टाइम जोन है कि नहीं है? तीसरा टाइम जोन कोई है कि नहीं है? हाँ, वो तीसरा टाइम जोन भी है, परमेश्वर अच्युत प्रभु की लाइफ में नहीं है, गुड, इट शुड नॉट बी देयर। कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं, वी हैव टू फिल द गैप्स। कोई व्यक्ति है वो ओवर स्लीपिंग कर रहा है, कोई व्यक्ति है वो 2 घंटे व्हाट्सएप रोज चेक कर रहा है, कोई देखो मोबाइल में कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई मोबाइल में शॉर्ट्स देख रहा है, हाँ, कितने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा है, हर ग्रुप में रिप्लाई कर रहा है वो, ये कितना अननेसेसरी कॉल्स होते हैं रोज, ये, ये। तो ये है थर्ड, सो वी हैव टू फिल द गैप्स। तो क्यों किसी व्यक्ति को नीड लगता है कि मुझे आध्यात्मिक लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? उसका मेजर रीजन है क्योंकि वो ना अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए रेडी नहीं। बेसिकली द मूवमेंट ओनली वन थिंग, देयर इज नो डिस्कशन ऑफ बैलेंस। फ्रॉम 1 to 2 things you need balance, from 2 to 3 things you need balance, is it not? So that's how life is, things keep on increasing, but when things keep on increasing you have to learn the art of balance. So that is why उसको थोड़ा डिसिप्लिन करना इम्पोर्टेंट है। यू टू लर्न हाउ टू फिल द गैप्स, जो भी मेरा अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है, लाइक हाउ कैन आई कट डाउन देयर। सो वी थिंक ऑफ कटिंग डाउन ऑन कृष्णा, वी शुड थिंक ऑफ कटिंग डाउन ऑन अदर प्लेसेस, एंड व्हेन यू हैव दैट थॉट, कृष्णा विल गिव इंटेलिजेंस हाउ टू कट डाउन, एंड दैट्स हाउ अ डिवोटी बिकम्स अ सिंसियर डिवोटी, devotee becomes a sincere devotee. I was mentioning that famous statement by Bhakti Tirth Swami Maharaj yesterday. What was the statement? In studying the life of a successful man,
in studying the life of a successful man, and all the successful men, what I have understood is the first thing which comes in their life is discipline, self-discipline, like that. So if we are disciplined and if we are working, then Krishna will give us like that. And why we should avoid extremes under guidance. Another important thing, understanding the danger of abandoning Krishna, Krishna consciousness. एक बार हम लोग भक्ति में आ गए, भक्ति के पहले का जीवन देखिए कैसा था, हाँ, कैसी कैसी स्ट्रगल्स हम लोग कर रहे थे माइंड के साथ, उसके साथ क्या क्या लोगों के जीवन में स्ट्रगल रहता. वॉट एवर वी हैव सीन, जो भी डिवोटीज होते हैं जो 50 के बाद भक्ति में आए, बहुत लेमेंट करते हैं, और उनका सबसे बड़ा लेमेंटेशन यही रहता है कि अभी बस टाइम नहीं. जो 50-55 के बाद भक्ति में आते हैं ना, उसको पता ही नहीं था इतने साल तो किसकी पूजा कर रहा है, पता ही नहीं, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड कौन है कुछ पता ही नहीं. ठीक है, ऐसे उसका जीवन निकल गया. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेट डेंजर. हाँ, डिवोटीज के भी लाइफ में देखेंगे, कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में आके अगर चला गया है, उसका लाइफ देखिए इतना पैथेटिक हो जाता है. कितना पैथेटिक उसका लाइफ हो जाता है, उसका लाइफ साइकिल ये लाइक दैट. So why? Because so that's very dangerous thing. You have to understand the dangers of leaving Krishna consciousness. किसी भी व्यक्ति का आप लाइफ देखिए जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में था और अब उसने छोड़ दिया उसका, देखिए उसका क्या स्थिति है. अजामिल का स्टोरी एक भागवतम में आता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में आप देख सकते हैं बैचमेट्स, स्टूडेंट्स, वेरी वेरी पैथेटिक. Yeah. So we have to contemplate on the dangers if we are not serious in Krishna consciousness. If we remain casual, then we contemplate. If we leave Krishna consciousness, what life will be? Life is like a big challenge. Also, why we need to avoid extremes under guidance? Because we don't want to become the prisoner of success. राधानाथ महाराज का फेमस लेक्चर है पुणे यात्रा का 2.5 घंटे का. डोंट बिकम द प्रिजनर ऑफ सक्सेस. वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ सक्सेस सो दैट वी रिमेन जस्ट विक्टिमाइज्ड. वी आर जस्ट विक्टिम ऑफ senses and just doing what we are doing. We don't want to become prisoner of success. We want overall success. We want health beyond fitness. So one lecture long back given by Radha Gopinath, health beyond fitness. So जो material definition of success is very deficient. जो भौतिक संसार में सफलता की परिभाषा है ना, वो परिभाषा अपने आप में अपूर्ण है. ये तो वो परिभाषा ऐसी है कि सक्सेसफुल आदमी सुसाइड कमिट कर रहा है, वो सक्सेसफुल आदमी वो डिप्रेशन के लिए साइकेट्रिस्ट, क्या सक्सेसफुल है वो? क्वेश्चन है ना. वो सुसाइड कमिट कर रहा है, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, रात में उसको नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है. So success, definition of success of material very deficient. So we don't want that kind of success. That is why we want to avoid extremes. And the last point, which I want to discuss today, so there are more maybe in some future sessions. Fourth important point for a devotee, very, very important when we become devotees, planning. Why planning is important? Please try to understand. As I told, the nature of responsibility is responsibility means load. आपने देखा है कभी, जैसे कुली को आपने देखा है, कोई भी व्यक्ति आपने से कुछ आप उठाते हैं, गीता भगवत गीता एक कार्टन उठा के आप चल रहे हैं, तो जैसे ही आप उठाएंगे तो टिल्ट हो जाएगा ना, एक साइड लोड बढ़ जाएगा, एक साइड हो जाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लोड. Load means tendency to get off balance. Load means what? Tendency to get off balance. ऐसा. इसीलिए हमको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले केवल मटेरियल लाइफ था, अब मटेरियल लाइफ के साथ स्पिरिचुअल लाइफ आ गया. अभी आगे स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ, जॉब भी आ जाएगा, फिर शादी हो गई तो फैमिली भी आ जाएगा, रिलेटिव भी आ जाएंगे. इज इट नॉट? रिलेशंस आ जाएंगे, कितना सारा चीज आता है. ये दैट इज व्हाई वन शुड लर्न हाउ टू प्लान.
डिवोटीज के लिए वेरी वाइटल है। अभी तक डिवोशनल लाइफ में नहीं थे, कुछ प्लानिंग की जरूरत ही नहीं थी, मस्त। हाँ, व्यक्ति सुबह उठने के बाद सोचता है क्या करना है अभी, कब उठना है, कब करना। हॉस्टल की लाइफ देखी है ना, ये अफलातून की लाइफ है वो। जस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड, लाइक दैट, nothing tangible he does, no improvement in so many years. पॉजिटिव नेगेटिव तो इम्प्रूवमेंट होता है उसका काफी, पॉजिटिव कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। बट नाउ वी बिकम devotees like that. We want internal change, we want also external change. Externally, so many things to learn, so many skills we need to acquire, so many subjects we have to study and get expertise into. And internally, character has to change, the thought process has to change. तो अभी हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल चेंज का। तो अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति प्लानिंग नहीं करता है, हाँ, तो कंप्लेन करेगा। क्या करेगा? कंप्लेन, कम प्लान, प्लान नहीं करा तो कम प्लान। कंप्लेन करेगा वो। तो फिर उसको कंप्लेन रहेगा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। हम्म, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप लोग कंप्लेन किए इसलिए मैं सेशन ले रहा हूँ। We have all rights to discuss, there's no problem. I am just telling some fundamental principle we should know if we want to grow. If we want to grow, I'm telling the principle. We should always discuss. And whenever we are facing some challenge, we should not keep with ourselves. But see, आप इसमें से कुछ पॉइंट मिस हो रहा है क्या, वो आपको देखना चाहिए। तो प्लानिंग नहीं करेंगे तो कंप्लेन करेंगे। दूसरा पॉइंट, प्लानिंग जो नहीं करेगा, ही विल मिस ऑन द प्रायोरिटीज। अब प्लान है नहीं भाई, तो प्लान नहीं है तो जो हो जाए। अब जैसे इसका प्लान है तो उसको क्लियर रहेगा। जैसे आपने देखा ना, टाइम मैनेजमेंट का वो दिखाते हैं, जार होता है, तो जार में रेत है, छोटे पत्थर हैं, बड़े पत्थर हैं। तो सबसे पहले मीडियम साइज के पत्थर हैं, सबसे पहले क्या डालना होता है? पहले डालना होता है, हाँ बोलो बोलो। पहले मतलब बड़े पत्थर डालेंगे, फिर ऐसे छोटे, फिर अल्टीमेटली इसमें बालू डालेंगे, फिर पानी डालेंगे। करेक्ट। तो क्या है, सबसे पहले उसमें बड़े पत्थर डालते हैं, क्योंकि आपने पहले रेत और वो सब डाल दिया, बड़े पत्थर के लिए जगह नहीं बचेगी। बड़े पत्थर मीन्स द प्रायोरिटीज। इसी तरह हमारा टाइम फिक्स है। इफ यू हैव 10 hours, यू कैन नॉट डू द जॉब ऑफ 11 hours। तो 1 घंटे का काम आपका हमेशा बचा रहेगा। जैसे आपकी एक बाल्टी है, वो 5 लीटर की, आपके पास 6 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी स्पिल होने ही वाला है। समझ गए आप? तो आदमी को जनरली, व्यक्ति को लगता है कि मैं सब कुछ सेट करके कर दूं, आज बहुत करना है। लेकिन देखा ना आपने, गांव में भी आप जाओ, हम लोग गांव में जब थे, तो वो कुछ नहीं करते लोग, मालूम क्या? लेकिन वो सुबह ही आते हैं घर पे, हमारे कभी वो आते थे, वो किसान वगैरह जो करते, अरे बहुत व्यस्त चल रहे हैं, बहुत व्यस्त चल रहे हैं, बहुत बिजी है। तो बहुत समय नहीं है, किस चीज के लिए समय नहीं है, क्या करना है कुछ क्लैरिटी नहीं। वो बिजी विदाउट वर्क ऐसा हो जाता है। तो वो क्या है कि उसको क्लैरिटी नहीं है, उसने प्लानिंग नहीं किया है। तो अब क्या, मेजर चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं ये। तो वो कुछ भी कर रहा है, जो सामने आ गया वो कर रहा है, जो डिवोटी मिल गया फिर उसके साथ 1 घंटे गुफ्तगू हो रहा है। गुया माख्याति पृच्छति हो रहा है। क्यों हो रहा है? हाँ, प्रायोरिटी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, क्या करना है। एग्जाम एग्जाम है कल, हाँ, और व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है पढ़ाई? कुछ प्लानिंग नहीं है, उसको क्लियर नहीं है किस टाइम पे क्या करना है मुझे। हाँ, मॉर्निंग टाइम पे चैंटिंग नहीं कर रहा है। तो जब प्लानिंग नहीं रहती तो ये 2 चीजें रहती है। पहला क्या, पहला तो कंप्लेन, उसके बाद दूसरा क्या, प्रायोरिटी वाली चीज मिस हो जाती है उसकी। तो हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि कुछ चीजें हम नहीं कर पाएंगे। हर दिन इतनी सारी चीजें करनी होती है, और उसमें से हम लोग कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बिजनेस का लॉ है, हाई प्रायोरिटी चीज ही आपको करनी है।
लो प्रायोरिटी आपको करना ही नहीं है, वो बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो व्यासदेव क्यों असंतुष्ट हो गए? क्योंकि उन्होंने लो प्रायोरिटी चीज को इंपॉर्टेंस दिया, कर्मकांड को, शुद्ध भक्ति की तरह। प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं, दैट वाज द कॉज ऑफ हिज डिस्पोंडेंसी। इसीलिए बहुत कुछ करने के बाद भी हम लोग असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि प्लानिंग नहीं, डिवोटी की लाइफ में प्लानिंग नहीं। और फिर वो डिवोटी से पूछो, वो सेवा तुमको बोला था क्यों नहीं हुआ? अरे प्रभु जी इतना सेवा है मेरे पास, इतना सेवा मेरे पास है। ये तो क्या है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी का सर्विस है, वो उसको मिस कर देता है। अरे बोला था ना, ये अभी डिलीवर करना है, ये करना है, वो करना है। अरे मैं उसमें कर रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहा है। दैट इज वाई टाइम मैनेजमेंट इज नाउ प्रायोरिटी मैनेजमेंट। तो ये बहुत बड़ा लॉस है डिवोटी के लिए। डिवोटी अगर प्लान नहीं कर रहा है ना, तो उसको बहुत दिक्कत आएगा। ठीक? तो अभी कुछ डिवोटी बोलते हैं, प्रभु ये मेरे नेचर में है नहीं, तो ऐसे ही हूँ मैं, शुरू से ही सरल स्वभाव का हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है, सरलता है ही वैष्णवता, और जो सरलता है वही वैष्णव है। हाँ, तो whenever we want to change, if someone wants to change, हाँ, he has to learn to take responsibility। जो ऐसा बोलेगा ना, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। वो कुछ डिवोटी हमेशा भूलते हैं, आप उसको एक काम बोलो, फिर एक हफ्ते बाद याद दिलाओ, तुमको बोला था ना, कब बोला था प्रभु जी? अच्छा अच्छा, आपने बोला था ये। सो ओके, वी हैव सर्टेन नेचर, सम पीपल आर मोर प्लान्ड, सम आर लेस प्लान्ड, अंडरस्टूड। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्क्रू ढीला है कलयुग में, सब लोग वैसे ही हैं, कोई भी परफेक्ट मशीन है नहीं है, सब डैमेज पार्ट आए हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, उसको पता होना चाहिए कि ये ढीला है मेरा स्क्रू, और ये मुझे टाइट करना है, ये स्क्रू, लाइक दैट। So that he has to learn that way. So when we are highly unplanned, so that becomes a challenge. प्रायोरिटी मिस हो जाती है, भूल जाते हैं, देन वी लूज ट्रस्ट ऑफ अ पीपल। डिवोटीज कैन नॉट गिव अस एनी सर्विस विद ट्रस्ट, लाइक दैट। उसको मालूम है करेगा नहीं, टाइम पे नहीं करेगा ये, इसको दे दिया मतलब चार लोग इसके पीछे लगाने पड़ेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू बिकम द ट्रस्ट वर्दी डिवोटीज, ट्रस्ट वर्दी डिवोटीज। इसको दे दिया, प्रभुपाद वुड रिलाई ऑन तमाल, तमाल कृष्ण महाराज, एनीथिंग तमाल कृष्ण महाराज। And there are also many devotees. Prabhupada would rely. India, Prabhupada gave Gopal Krishna Maharaj. Prabhupada told Jayapataka Maharaj, just go to the West Bengal, preach, make 40,000. You should have at least 40,000, 50,000 disciples. So we have to become trustworthy devotee. Trustworthy devotee मतलब उसको सेवा दिया, कोई सेवा दिया। प्रभुपाद जी, एक बार एक डिवोटी को प्रभुपाद ने सेवा दिया। प्रभुपाद जी एक जगह आए, वापस आए, तो प्रभुपाद जी ने बोला था उसको बाथरूम का कुछ रिपेयर कराने के लिए। प्रभुपाद जी आए, फिर देखा टैप काम नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी ने उसको पकड़ा, प्रभुपाद जी ने बोला, वो व्यक्ति को बुलाया, टैप काम नहीं कर रहा है, बोला था ना तुमको। तो उसने दूसरे डिवोटी को बोला, अरे तेरे को बोला था ना टैप काम नहीं कर रहा है। उसने तीसरे को, तो प्रभुपाद जी के सामने चार लोग खड़े हैं। Prabhupada बोले, this is called as, Prabhupada said, this is called as passing the buck. This is called as passing the buck. Prabhupada said, I told you, that first person, I told you, you should have done it. This is accountability. Yeah. So we have to learn these things. So that is why it is very important to plan. If we don't plan, then we will complain, priorities will get compromised. Third, very important thing, we will have difficulty in rendering meaningful and effective contribution to Prabhupada mission. हाँ, we will have difficulty. Contribution तो कुछ ना कुछ तो करेंगे हम, अब आदमी है, अब तो कुछ ना कुछ तो भक्त हमसे करवा ही लेंगे। कहीं ना कहीं तो एंगेज करेंगे ही ना, वो कहीं ना कहीं तो हमारा एंगेजमेंट हो ही जाएगा, कोई छोड़ेंगे नहीं डिवोटी हमको। लेकिन इफेक्टिव मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे अगर प्लानिंग नहीं करेंगे। तो इफेक्टिव मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन अगर करना है हमको प्रभुपाद जी के आंदोलन में, हाँ, तो हमारा प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्लान्ड है उस पर आप रिलाई कर सकते हैं।
जो प्लान्ड है तो मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को प्लान करेगा तो कॉन्शियसनेस अच्छा रहेगा। जितना कॉन्शियसनेस है उसका उतने ही हद तक वो सर्विस कर सकता है। अब वो प्लान्ड ही नहीं है तो हमेशा उसकी यही कंप्लेन रहेगी, साधना कार्ड में रेड जोन में है वो। साधना अच्छे से नहीं हो रही है, रीडिंग नहीं हो रही है, हियरिंग नहीं हो रही है, ये तो फिर क्या है, वो गुरु महाराज के लिए, प्रभुपाद के लिए वो करने का भाव नहीं आएगा उसके अंदर से, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन रहता है। एक्चुअली कॉन्शियसनेस जितनी इवॉल्व होती है ना, इट्स नेचुरल फॉर अ पर्सन टू थिंक ऑफ अदर्स एंड ट्राई टू सर्व। इट्स नेचुरल फॉर इट। वो कॉन्शियसनेस इवॉल्व नहीं होगी, वो नहीं सोच सकता है। हाँ, वो अपने में ही सोचेगा ये, क्योंकि जैसे बताया ना, आहार निद्रा भय मैथुन, वो एनिमल स्पीशीज रहता है ना, वो दूसरे के बारे में सोच नहीं सकता है। ये let me complete. मेरी क्लास Yeah, carry on. So this is what it is. So it is important that person should evolve in his consciousness. And if you have classes, they can have. Second years can carry on. They can honor prasadam, or you can honor prasadam below, no problem. Behind they can sit honor prasadam. So अगर consciousness evolve नहीं है उसकी, तो वो नहीं कर सकता ऐसे हो, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाएगा ना। तो वो उसका वही स्ट्रगल चलते रहेगा, और वो कितना भी सेट हो जाए उसको लगेगा नहीं कि मैं सेट हो गया हूं, क्योंकि ये तो माइंड में है ना, उसको लगेगा नहीं कि मैं सेट हो गया हूं। दैट इज वाई प्लानिंग इफेक्टिव मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इफ यू वांट टू मेक इन श्रील प्रभुपाद मिशन, वी नीड टू बी प्लान्ड, वी नीड टू हैव प्लान, हाउ आई विल रीड, हाउ आई विल हियर, हाउ आई विल चैंट, एवरीथिंग नीड्स प्लानिंग लाइक दैट, यू नो। कैसा मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम का क्वालिटी होना चाहिए। अभी जैसे कल एकादशी आ रहा है, ये और उसको पता ही नहीं है, सुबह अनाउंस हुआ आज तो एकादशी है, अरे आज एकादशी है। हाँ? बहुत अच्छी बात है, आज जन्माष्टमी है, अरे आज तो भगवान अवतार हुए हैं, कितना शुभ दिन है आज। ये फीस्ट में क्या है, सीड्स। So when the lack of planning is there, is not prepared, he cannot take advantage like that, he cannot effectively serve. It needs planning for effective meaningful contribution like that. नहीं तो उसका क्या होता है, haphazard contribution, contribution करता है वो, haphazard contribution, it's not effective contribution. As we grow in Krishna consciousness, so many people have so many expectations, is it not? So many people have so many expectations and they want time, they want energy. So if we are not planned, how will we serve? Like, how will we be able to serve them? Like, even in material life, person faces challenges, one who is not planned at all. Even in material life, he faces challenges. If we are planned, we will be able to do many, many services like that. Because Krishna empowers. Krishna sees time is the energy of Krishna. And Krishna sees that this person is using the gift given by me in my service thoughtfully. So Krishna gives us the blessing by which we are able to render more service. So for a devotee, it's a very, very vital aspect to plan. To plan. Because if we plan, then only we can execute the priorities. So one priority for a devotee is reading, hearing, chanting. So any devotee is not finding time for reading, hearing, chanting. He feels he is so busy. He has to see. Maybe there is something missing in the planning. Something missing in the planning. If we just try to see how can I do it, there must be some lack in the planning. Somewhere I will be able to find out some slot. कुछ भी जॉब कर रहा है वो, कुछ भी कर रहा है, Krishna will give him the clue how he can do it. Now you see, like some people are there, they have a habit of smoking, drinking sometimes, like that. They are doing job and everything, but still they do it or not. हाँ, जैसे इंडिया में लोग गुटखा खाते हैं, देखे ना आपको, ऑटो वाला आपको बिठाता है, थोड़ी दूर लेके जाता है, भैया 5 मिनट, वहां रुकता है, वहां से गुटखा खरीदता है. How he is able to find, his mind is there, I want to do it. So similarly, if we want to do it, Krishna will give the clue how to do it like that. And all of you must have experienced in your life, the moment we get a desire for something, Krishna gives the idea. Like somebody gets a desire, I want to serve Tulsi Maharani.
तुरंत भगवान उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, देखो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा। वो उसकी सेवा के लिए, उसके लिए हमारा एकदम फेंट डिजायर रहता है, उसको ही भगवान little desire we get, I want to be in association of devotee, Krishna will arrange that way. So very, very important that we plan our life. This life is not our life. This life belongs to Guru and Krishna. So when we plan like that, then we'll be able to render service. If we don't plan, then there will be a lot of complaints. There will be unnecessary complaints. There could be necessary complaints also, but there will be unnecessary complaints if we don't plan like that. If we don't plan, we will not understand how much can be done. We will never be able to understand how much actually can be accomplished within the 24 hours given by Krishna. Like that. And our mind will tell her it's impossible only. ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो practically नहीं होता है. अरे जॉब वाले थोड़ी करते हैं, अरे ऐसा थोड़ी होता है. Mind will give 100 excuses. Like that. Only when we are planned, and when we plan our Krishna consciousness, we plan our services like that. So then only we'll get to know how much is there in the same 24 hours whatever Krishna is given. So today just I spoke about these two principles. One is following rules mechanically, niyamagra. Second is I spoke about planning. Devotee should understand the importance of planning. So yes, somebody has any question? Yes, yes. You tell about how to do activity consciously, or what is conscious activity? Suppose if I am taking this pen from there, how can I take it consciously? So when we talk about consciously, like Bhakti Maharaj has written a book on mindfulness. In one of his book on spiritual warrior, he explains about mindfulness, basically being mindful. So we may not be conscious about each and every second, like you tell, like you spoke, how to lift the pen consciously. We have to begin with the spiritual activities, doing consciously. Actually, material activities, even if we are doing mechanically, there's no loss. Like somebody is tying the lace of the shoes, somebody is driving like that. But we have to bring first consciousness in the spiritual activities. Those are spiritual in nature. We have to be conscious there. And then the second step is while doing material activities, we have to inject spiritual things. Like devotees are driving, then also they sing kirtan or they sing Vaishnava bhajans, like that. So that makes it spiritual. Okay. If we are playing karta, Hmm. then how can it be conscious? Then I have got to understand how can I do that activity consciously? What is See, the principle in those things involved is when we do an activity, we want to do the best we can. And why we are doing the activity, the goal is for the pleasure of Hari Guru and Vaishnavas. That is the goal. So that is why we want to do properly and gracefully. Even the kirtans, dancing, everything we want to do for the pleasure. Like that. What is the relation between the consciousness, how activity doing consciously, devotionally, and by surrendering to Krishna? So any activity when we are doing like that, first thing is to be conscious, like Maharaj says. First be conscious, then be Krishna conscious. Like that he says. So first thing is doing consciously. And when we start doing consciously, at least we are aware what we are doing. And as we grow in bhakti, gradually, first comes Vidhi Bhakti, then comes Raganuga Bhakti. So in Raganuga Bhakti, the emotions get little involved. Then comes Bhav Bhakti. Bhavavat Bhakti, emotions are mature. Like that. So surrendering to Krishna at our level is this only. We accept what is favorable. We avoid what is unfavorable. Heartily we do. We try our best to accept what is favorable and we try our best to avoid what is unfavorable. Because we intellectually understand it, this is a surrender at our level. Like that. Yes. Yes. Anybody else has any question?
Because we'll end here. Thank you, Shil Prabhupada.